नमस्ते बिटिया, कुछ हमेशा खुश रहो बिटिया। Good morning everyone. This is Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at JAYOTI VIDYAPEETH Women's University. This is the second lecture of bronchial asthma. In the previous lecture, we have discussed about the etiology and pathophysiology that is going on in the lungs during bronchial asthma. We have discussed what is asthma. We have discussed about atopy, various factors that are responsible for the development of bronchial asthma. But now, in this today's lecture, we will be discussing about the various clinical features and investigations that are usually done in the cases of bronchial asthma. क्या-क्या clinical features हमारे पास में patient लेके आता है bronchial asthma में, और उसके लिए क्या-क्या investigations की जाती है, इन सबको हम आज अभी इस lecture में discuss करने वाले हैं, ठीक है? So let's start with the clinical features. Bronchial asthma क्या था वो मैं पिछले lecture में बता चुका हूँ. मैं चाहूँगा उसे आप बार-बार repeat करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ताकि आप उसकी pathophysiology को अच्छी तरह से समझ पाएं. इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो you will easily understand the pathophysiology behind bronchial asthma. So let's start with clinical features. क्या clinical features patient हमारे पास में लेके आएगा जब भी bronchial asthma का हमारे पास में आता है, तो क्या-क्या signs and symptoms clinical features हमारे पास में patient लेकर आएगा. Asthma is a syndrome characterized by airflow obstruction. Asthma एक ऐसा syndrome है that is characterized by airflow obstruction that varies markedly, both spontaneously and with treatment. तो जो asthma होता है इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, airflow obstruction होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है, spontaneously भी and with treatment भी, है ना? spontaneously भी वेरी करता है और ट्रीटमेंट के साथ भी वेरी करता है. मतलब सीजनल वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. कभी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, कभी जैसे सीजन चेंज होता है वैसे बिल्कुल ठीक हो जाता है. उसी तरह से दवाई देने से पहले अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है तो दवा लेने से पहले पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, और जैसे ही आप ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देते हैं पेशेंट में एकदम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग जाता है, पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होने लग जाता है, एंड वी सी अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन दैट कंडीशन. Asthma shows chronic airway inflammation and increased airway hyperresponsiveness. यहाँ पर क्या होता है, it shows chronic airway inflammation. यहाँ पर chronic airway inflammation होता है and increased airway hyperresponsiveness. इसके साथ में increased airway hyperresponsiveness भी पेशेंट का देखने को मिलता है. Typical symptoms include wheezes, cough, chest tightness and dyspnea. जो typical symptoms यहाँ पे पेशेंट के होते हैं उसमें होते हैं wheeze, cough, chest tightness and dyspnea. ठीक है, ये हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं. It is accompanied by the presence of airflow obstruction that is variable over the shorter period of time. इसके साथ में हमें airflow obstruction देखने को मिलता है that is variable over shorter period of times. Now clinical features. Clinical features में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है. पेशेंट हमारे पास में आता है अस्थमा का तो हमें क्या-क्या सिम्टम्स बताता है जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पेशेंट हमारा अस्थमा का. अस्थमा ऐसे जब आप एक बार समझ जाते हैं अस्थमा को, पेशेंट देखते ही आपको समझ आ जाता है, उसके सांस लेने से ही आपको समझ में आ जाता है कि पेशेंट का अस्थमा है. लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉमन सिम्पटम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. यहाँ पे wheezing होती है, we can see the wheezing, we can see the dyspnea, coughing. These are variable both spontaneously and with therapy. यहाँ पे wheezing होती है, dyspnea होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है पेशेंट को, है ना, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, wheezing होती है. These are variable both spontaneously and with therapy. तो ये जो चीज़ें होती है वेरी करती है बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली भी और ट्रीटमेंट के साथ भी. सिम्टम्स में भी वर्स्ट एट नाइट. जो सिम्टम्स होते हैं वो वर्स्ट होते हैं, कब वर्स्ट होते हैं, नाइट के दौरान, एंड द पेशेंट टिपिकली अवेक इन द मॉर्निंग आवर्स. तो हम हमेशा देखते हैं जब भी अस्थमा का पेशेंट होता है, जैसे ही रात का समय होता है, रात का समय अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है. वो रात में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है. वो बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही है, एकदम से उठ के बैठ जाता है. होता क्या है, जो म्यूकस होता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है पूरे लंग्स में, ठीक है. उसके वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्पनिया आने लग जाता है. जैसे ही वो उठ के बैठता है ड्यू टू ग्रेविटी तो म्यूकस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उस वजह से पेशेंट को सांस थोड़ा आराम से आने लग जाती है. इस वजह से होता क्या है कि डिस्पनिया जब भी पेशेंट रात में सोता है तो नाइट टाइम इज वर्स्ट फॉर अस्थमा, है ना. अर्ली मॉर्निंग आवर्स 12 से 2, 2 से 4, वी हैव सेपरेट मेडिसिन फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स. हमारे पास 12 से 1 के लिए, 12 से 2 के लिए अलग मेडिसिन है, 3 से 5 बजे के लिए सुबह अलग मेडिसिन है. तो ये बताती है कि ब्रोंकियल अस्थमा अगर किस वक्त हो रहा है तो उस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. तो रात का टाइम सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए मुश्किल होता है. ऑल्दो जैसे जैसे डिजीज़ क्रॉनिक होती जाती है उसमें सीवियरिटी बढ़ती जाती है, उसके साथ में आपको दिन का टाइम भी और भी मुश्किल होता जाता है.
देयर इज इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, अस्थमा के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, द म्यूकस बिकम टेनेशियस, है ना, तार के जैसा थिक हो जाता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इतना ज्यादा थिक हो जाता है, ठीक है। म्यूकस दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, जैसे कि एक्सपेक्टोरेट करने में, एक्सपेक्टोरेशन में जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, देयर आर वीजिंग, देयर आर डिस्निया, कफिंग होती है, these are variable both spontaneously and with therapy. The symptoms may be worse at night and patient typically awake in the morning hours. इसके साथ में patient क्या करता है, तो सुबह के समय जग जाता है, उठ जाता है। Increased mucus production यहाँ पे हो सकता है, and there is tenacious mucus that is difficult to expectorate. जो mucus होता है बहुत ज़्यादा tenacious होता है and it is difficult to expectorate. क्लिनिकल फीचर्स में प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स मतलब पहले जो दैट प्रेसीड्स दैट टाइम, अस्थमा का अटैक आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब होने से पहले पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स आती है, देयर कैन बी इचिंग अंडर द चिन, पेशेंट के चिन में नीचे की तरफ खुजली चलने लग जाती है, पेशेंट बोलता है कि पहले बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, उसके बाद में कंप्लेंट्स चलने लगती है। कई बार जो पुराने पेशेंट्स होते हैं उनको उसी टाइम पता चल जाता है कि जैसे इचिंग होने लगती है उनको पता चलने लग जाता है या मुझे अस्थमा का अटैक आने वाला है। डिस्कम्फर्ट बिटवीन द स्कैपुला, जो पीछे स्कैपुला है उसके बीच में डिस्कम्फर्ट सा फील होने लग जाता है, और इनएक्सप्लिकेबल फियर, पेशेंट एक्सप्लेन नहीं करता था लेकिन उसके अंदर ही अंदर ऐसे डर बैठने लग जाता है कि मुझे अस्थमा का अटैक आने वाला है, वो फियर उसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स में आते हैं, जिससे कि आने से पेशेंट को पता चल जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में मुझे अस्थमा का अटैक होने वाला है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हमारे पास आते हैं इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, दोनों तरह के फिजिकल साइंस हमें देखने को मिलते हैं। ब्रोंकाई होता है, वीजेस होती हैं थ्रू आउट द चेस्ट एंड विद हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आपकी लंग्स होती है, हाइपर इन्फ्लेट हो जाती है। इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी ब्रोंकाई होती है, वीजेस होती है, ब्रोंकाई होते हैं और थ्रू आउट द चेस्ट होते हैं। एंड देयर इज नॉन प्रोडक्टिव कफ, खांसी बहुत आती है, पेशेंट को खांसता रहता है, खांसता रहता है, खांसता रहता है, लेकिन कफ कुछ बाहर निकल के नहीं आता। पेशेंट बोलता है हमेशा मुझे खांसी चल रही है, अगर किसी तरह से मेरा कफ बाहर आ जाए तो मुझे आराम हो जाएगा, तो ये नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, सूखी खांसी है, बिल्कुल किसी तरह का कफ बाहर नहीं आता। अस्थमा इज मिस्टेकन फॉर कोल्ड एंड चेस्ट इन्फेक्शन, कई बार पेशेंट हमारे पास में आता है खांसी को लेकर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई नए नए डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं या हमारा ध्यान अस्थमा की तरफ जाता ही नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि इसको नई नई ठंड लगी है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा ऐसे टाइम पे जाना चाहिए अस्थमा की तरफ कि कहीं अस्थमा तो नहीं है, अभी हमें एक्यूट फेज दिख रही है लेकिन आगे जाके ये ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो जाए, जिसके वजह से पेशेंट में हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाए, नैरोनेस हो जाए, सांस लेने में तकलीफ आने लग जाए पेशेंट को, ठीक है। The precipitant includes exercise, precipitant मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको करने के बाद में तकलीफ डरना। प्रेसिपिटेंट इंक्लूड एक्सरसाइज, पेशेंट ने एक्सरसाइज करी, थोड़ी भी एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करके आया, एकदम से सांस लेने में तकलीफ चालू हो गई, कोल्ड वेदर जैसे सर्दियां चालू होती है सांस लेने में तकलीफ चालू हो जाती है। एक्सपोजर टू एयरबॉर्न एलर्जेंस, तो हमने जो ट्रिगर फैक्टर्स की पिछले लेक्चर में बात की थी, एयरबॉर्न एलर्जेंस थी, पोलन्स है हमारे पास में, फर है, एनिमल फर है हमारे पास, जिसके कि आपने पोलन स्पेशली एयरबोर्न एलर्जेंस में आती है ना, पोलन जैसे आप उसके कांटेक्ट में आए आपको एकदम से उसने आपको अस्थमा प्रेसिपिटेट कर दिया। एंड और पोल्यूटेंट्स एंड वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके साथ में पोल्यूटेंट्स एंड वायरल एयरवे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पेशेंट विद माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, जो पेशेंट होते हैं माइल्ड और इंटरमिटेंट अस्थमा के वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बिटवीन द एक्सेसरबेशन, मतलब दो अटैक्स जैसे ही आते हैं, दो अटैक्स के बीच में पेशेंट आपके बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे मान लीजिए उनमें किसी तरह का अस्थमा है ही नहीं, है ना। एक बार अटैक आया उसके बाद में एक ऐसा पीरियड आता है जब पेशेंट को बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं होते और उसके बाद में पेशेंट को तकलीफ चालू हो जाती है, वापस से उसका अटैक आता है, ठीक है। पेशेंट विद परसिस्टेंट अस्थमा रिपोर्टिंग ऑनगोइंग ब्रेथलेसनेस एंड व्हीज, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको ऑनगोइंग अस्थमा होता है उनको हमेशा ब्रेथलेसनेस बनी रहती है। The patient with persistent asthma report ongoing breathlessness and wheeze, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि ongoing breathlessness होती है और wheezes बनी हुई रहती है, ठीक है, हमेशा सांस लेने में तकलीफ होती है और हमेशा wheeze बनी रहती है। In some circumstances asthma is triggered by medication, कई बार क्या होता है कि आप किसी तरह की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन लेने की वजह से कई बार आपको अस्थमा ट्रिगर कर जाता है, ठीक है, जैसे कि आप NSAIDs ले रहे हैं, है ना, आपने नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग किसी भी तरह की चीज के लिए आप दवा अगर ले रहे हैं तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। इट प्रेजेंट पेशेंट presents in the middle age with asthma
एंड नेजल पॉलिप। तो जो पेशेंट हमारे पास में आता है वो किस किस चीज के लिए आता है, मिडिल एज में एस्थमा के लिए आता है, राइनोसाइनोसाइटिस के लिए आता है और नेजल पॉलिप्स के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मिडिल एजेड इंडिविजुअल हमारे पास में आ रहा है एस्थमा को लेकर, तो उसको राइनोसाइनोसाइटिस भी हो सकता है और नेजल पॉलिप भी हो सकता है। कोराइजा है, नेजल पॉलिप बन रहा है, तो उसके बाद में फिर एस्थमा धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। एक और कंडीशन यहाँ पे होती है जिसे हम सीवियर एक्यूट एस्थमा बोलते हैं। सीवियर एक्यूट एस्थमा के अंदर क्या होता है, जो एस्थमा के सिम्टम्स आते हैं बहुत ज्यादा सीवियर आते हैं, बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ में उसके सिम्टम्स आते हैं। और उसमें क्या होता है, देयर इज इंक्रीज चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, इंक्रीज चेस्ट टाइटनेस होती है, बहुत ज्यादा व्हीजिंग होती है, बहुत ज्यादा चेस्ट में जकड़न महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा व्हीजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्निया होता है। इट आर ऑफन नॉट रिलीव्ड बाय देयर यूजुअल इनहेलर्स। तो जो सीवियर एस्थमा का केस होता है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, चेस्ट टाइटनेस पेशेंट की होती है, बहुत ज्यादा व्हीजिंग होती है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, एंड डिस्निया दैट इज नॉट रिलीव्ड बाय द यूजुअल इनहेलर। तो पेशेंट जो इनहेलर लेता है उससे वो ठीक नहीं हो पाता है, उससे आराम नहीं मिल पाता है। तो वो सीवियर एस्थमा की कंडीशन आ जाती है, जब इतनी ज्यादा नैरोनेस हो जाती है, इतनी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है कि आपने जो दवा ली है उससे भी आपको आराम नहीं मिल पाता। ब्रेथलेस दैट दे हैव अनेबल टू कंप्लीट सेंटेंस, इतना ज्यादा ब्रेथलेस हो जाते हैं कि उसके वजह से अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाते और उसकी वजह से साइनोटिक हो जाते हैं, एकदम सांस लेने में इतनी ज्यादा परेशानी आ जाती है कि दे बिकम्स साइनोटिक। साइंस, इसके साइंस में क्या होता है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन होती है, सांस लेने में बहुत तेज 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 सांस लेने लग जाता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन होता है एंड टैकीकार्डिया, साथ में टैकीकार्डिया, हार्ट रेट भी पेशेंट की तेज हो जाती है, तेज तेज सांस लेने लग जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन होने लग जाता है एंड टैकीकार्डिया के सिम्टम्स आते हैं। देयर इज मार्क्ड फॉल इन द स्पायरोमेट्रिक वैल्यूज एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम। यहाँ पे स्पायरोमेट्रिक की वैल्यूज आपकी बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम्स भी कम हो जाती है। आर्टीरियल ब्लड गैस ऑन एयर शोज हाइपोक्सेमिया, तो जो आपकी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है वो हाइपोक्सेमिया शो करता है, पीसीओ2 की वैल्यू कम हो जाती है। इट इज यूजुअली लो ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, तेज तेज वेंटिलेशन करता है जिसकी वजह से पीसीओ2 का लेवल कम हो जाता है। नाउ हाउ विल यू डायग्नोस, आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे जिससे कि आप इस डायग्नोसिस पे पहुंच पाओ कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ब्रोंकियल एस्थमा है। यूजुअली अपरेंट फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ वेरिएबल एंड इंटरमिटेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो डायग्नोसिस इसका होता है वो अपरेंट होता है कहाँ से, फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ वेरिएबल इंटरमिटेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरमिटेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं उससे इसका डायग्नोसिस हो जाता है। लंग फंक्शन टेस्ट में आप सिंपल स्पायरोमेट्री करते हैं, आप नॉर्मल स्पायरोमेट्री करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह का लंग फंक्शन टेस्ट पेशेंट का है। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में आप सीरम आईजीई लेवल को चेक करते हो जो हाइपर सेंसिटिविटी को बताती है, एंड स्पेसिफिक आईजीई टू इनहेल्ड एलर्जीज। इसके अलावा स्पेसिफिक आईजीई आप देखते हैं इनहेल्ड एलर्जीज के लिए। रेडियो एलर्जन टेस्ट, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, आरएएसटी आप इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, आईजीई को देखा आपने, आरएएसटी टेस्ट किया, मे बी मेजर्ड। स्किन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी चेक करने के लिए आप स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं टू कॉमन इनहेलेंट एलर्जीज, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एलर्जिक स्टेटस, इसके अंदर आप एलर्जिक स्टेटस को भी मेजर कर सकते हैं बाय स्किन प्रिक टेस्ट। ठीक है, एंड टोटल एंड एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई, तो आप इसमें टोटल आईजीई भी चेक कर सकते हैं और एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई को भी चेक करके आप डायग्नोस कर सकते हो पेशेंट को कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्रोंकियल एस्थमा है। तो एक बार हम डायग्नोसिस को वापस से देख लेते हैं। यूजुअली अपरेंट सिम्टम, लंग फंक्शन टेस्ट आप कराते हैं, स्पायरोमेट्री कराते हैं, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में आईजीई लेवल कराते हैं और इसके अलावा आरएएसटी कराते हैं, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट ना, स्किन टेस्ट कराते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट आप करा के देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एलर्जिक स्टेटस बाय स्किन प्रिक टेस्ट, टोटल एंड एलर्जिक स्पेसिफिक आईजीई आप करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट एक्सरे अपीयरेंस आप करते हैं। हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग फ्लूइड्स, तो इसके अलावा रेडियोलॉजिकल में चेस्ट एक्सरे आप कराते हैं, पेशेंट से बोलते हैं चेस्ट एक्सरे पीएबी करा के लाओ जिसमें आपको हाइपर इन्फ्लेमेशन दिखता है ऑफ द लंग फ्लूइड्स। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट ऑफ द इओसिनोफिलिक एयरवे इन्फ्लेमेशन भी आप देख सकते हैं, एयरवे इन्फ्लेमेशन को आप देख सकते हैं बाय एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल। तो आपने पहले इनहेल करी नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड को, उसका जो एक्सहेल किया उसके बाद में उस लेवल को आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है इओसिनोफिलिक एयरवे इन्फ्लेमेशन कितना है। एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को आप देखकर आप चेक कर सकते हो कि कितना उसका लेवल है और उस हिसाब से आप डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट के एयर फ्लो में इन्फ्लेमेशन, जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, कौन कौन सी और डिजीजेस हैं जो कि आपको अस्थमा से
कि जैसे दिखती है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को एस्थमा है या कोई और दूसरी पर्टिकुलर डिजीज है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहला आता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय ट्यूमर और लेवेंजियल एडिमा। तो अगर आपका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किस वजह से, ट्यूमर की वजह से या फिर लेवेंजियल एडिमा की वजह से, उस वजह से भी आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जो ब्रोंकियल अस्थमा को रिसेंबल कर सकता है, मिमिक कर सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसके अंदर भी सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा लगता है कई बार कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है, अस्थमा का अटैक आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। ठीक है, मिमिक द व्हीजिंग ऑफ अस्थमा, बेसिलर क्रैकलिंग्स आपको देखने को मिल सकती है प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो सीओपीडी भी आपको मिमिक करता है, ब्रोंकियल अस्थमा के जैसे सिम्टम्स उसमें आते हैं, कफ के जैसे सिम्टम्स आते हैं। सो दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आपका। In the next lecture, we will be talking about the management of asthma. किस तरह से हमें उसका मैनेजमेंट करना है, वो मॉडर्न मेडिसिन में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, होम्योपैथी में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इटियोलॉजी देखी, पैथोफिजियोलॉजी देखी, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं अस्थमा के उनको देखा है, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो हमने पढ़ा है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। So this session was powered by Digital Version 2.0 by JAYOTI VIDYAPEETH University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much. This was Dr. Ravi Jain. अगर कोई भी परेशानी आप लोगों को होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर पूछ सकते हैं। That was all for today. Thank you very much.